our today's topic. So I think in last lecture I already discussed this harmonic analysis. Okay, so this is the numerical approach to find the Fourier series of a given function. Okay, so again I will repeat that whole process. Okay, so in case of harmonic analysis, instead of function, what we have? Instead of function, we have a tabulated data. Okay, so instead of function, we have given a data in this form. This data is called as tabulated data. So this y gives you the function values and x is the domain values. So like say for x is equal to x1, that function takes value. Sorry, it is a y1, and for x is equal to x2, that function takes value y2, and for x is equal to xm, that function takes value ym. So in this way, we have given a data. So we don't have any function, and we have to assume this function or this data to be periodic, because this Fourier series can be calculated only for a periodic function. Okay, so we have to assume this data to be periodic. Okay, if this data is periodic means what? Okay, means what? अगर ये आपका डाटा periodic है, इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of that statement that this data is periodic? Yes, anyone? Fourier series कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होगा. हाँ, so कुछ टर्म्स के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट होगा. लाइक से फॉर x इज इक्वल टू m+1, ओके, दैट फंक्शन में टेक्स वैल्यू y1 अगेन, है ना. डाटा आपका पीरियोडिक होता है तो कुछ स्टेप के बाद या कुछ फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ x, ओके, दैट रिपीटेशन विल स्टार्ट. ठीक है, and in this case we consider a Fourier series in this form. Okay, as this is the numerical approach. Okay, so we can't directly find the value of an and bn, है ना, because this is for all n. In case of analytical approach only, we can find the value of an and bn directly, but in case of numerical approach, we can't directly approach to an. तो आपको कैसे अप्रोच करना होगा? First we need to calculate a1, then a2 and so on. In a similar way for bn, first we need to calculate b1, b2 and so on. Okay, so just because of this, here I split this Fourier series in terms of this first harmonic and second harmonic. Okay, whatever term you will get for n is equal to 1, that we generally call it as first harmonic term. And there is one more question related with this first harmonic term, that is called as the amplitude of first harmonic. Okay, so I will give the definition of this now. What is amplitude of first harmonic? So that amplitude is actually under root of a1 square plus b1 square. Okay, this is the amplitude of first harmonic. And for n is equal to whatever you will get here, okay, this term is called as the second harmonic term. And what is the amplitude of the second harmonic? Yes, what is the amplitude of the second harmonic? ये क्वेश्चन आपको आने वाले ऑनलाइन में. a2 square. You can similarly generalize this a2 square plus b2 square under root of a2 square plus b2 square. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. a1 b1 की वैल्यू रहेगी वहाँ पे. You have to just find the amplitude of first harmonic. या तो a1 की वैल्यू गिवन होगी, b1 आपको कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड आल्सो. तो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द Fourier series. दिस इज योर कांस्टेंट टर्म. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्मोनिक. दिस इज द constant term. This is called as the first harmonic. This is called as the second harmonic. Okay, okay. And now after this, to calculate the values of this a0, this a1, b1, a2, b2. Okay, so here we divide this problem in two parts. Okay, one is what? The random interval. This c to c plus 12 interval is for any given function. ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को c to c plus 12 से सॉल्व कर सकते हो. सो हियर वी आफ्टरवर्ड्स वी डिवाइड दिस पार्ट इन टू इंटरवल. वन इज c to c plus 12 and second part is what? 0 to l interval. But for this second part, in the question itself, they have to mention the calculate either half range sine series or cosine series, or either sine series और cosine series. तो ये वर्ड कंपलसरी वहाँ पे चाहिए, तो ही आपको 0 to l से कंपेयर करके जाना है. ओके, क्योंकि 0 to l का मीनिंग क्या होता है? इन दैट केस वी हैव टू वर्क ऑन ओनली हाफ रेंज इंटरवल. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि अगर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में आपको ऐड करके दे तो कंसीडर द इंटरवल 0 to 3. इन दैट केस यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस सेकंड अप्रोच, क्योंकि कंपलसरी उनको वहाँ पे मेंशन करना होगा कि यूज कैलकुलेट आइदर साइन सीरीज और आइदर कोसाइन सीरीज. ये वर्ड आता है तो ही आपको 0 to l से कंपेयर करना है. अदरवाइज वी ऑलवेज कंपेयर विद c to c plus 12 इंटरवल. मैं फिर से क्लियर करके दे रहा हूँ. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इन दोनों स्टेटमेंट में. अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि साइन सीरीज कैलकुलेट करो, कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, या हाफ रेंज साइन सीरीज कैलकुलेट करो, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, तो ही आपको 0 to l से कंपेयर करना है. इन दैट केस ओनली यू हैव टू कंपेयर विद 0 to l. अदरवाइज for every example you have to compare with c to c plus 12.
ओके, कंपेरेबल मीन्स आपको वो सारे फॉर्मूले यूज करने हैं एंड दोनों केस में फॉर्मूले सेम है, ठीक है। लाइक से फॉर ए नॉट इट्स 2/m मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई आई, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला बस आपको क्या करना है, हाँ मैंने इन जनरल दिया है बट यू कैन इजीली राइट, सॉरी ये यहाँ पे n पाई x i आना चाहिए, सो आई विल करेक्ट दिस फॉर्मूलेज। सो ए एन इज इक्वल टू 2/m समेशन i runs from 1 to m yi cos n pi x i by l, and what is that bn? bn is equal to 2/m summation yi n pi x i by l. So if I calculate a1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 2/n yi cos pi x i by l, ओके। a1 मतलब यही टर्म आपको लेना है, मैंने आपको बोला है फॉर्मूला कैसे याद रखना है, a1 की जगह पे बस yi लिखो, हो गया ये फॉर्मूला a1 का, ओके। b1 का फॉर्मूला क्या आएगा, b1 की जगह पे बस yi लिखो, हो गया b1 का फॉर्मूला। a2 का फॉर्मूला कैसे आने वाला है, a2 की जगह पे बस y1 लिखो, सॉरी हाँ yi लिखो, and similarly in this case just write down yi, okay। so from that also you will get the formulas for a naught, a1, b1, a2, b2 और एक इन जनरल भी आप ऐसे क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। द सेम फॉर्मुलाज आर देयर फॉर दिस नेक्स्ट केस, ओके। ओनली थिंग इज व्हाट आई हैव टू जस्ट ऐड दिस n एज वी हैव टू राइट दिस द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें कुछ डाउट्स है क्या? फॉर्मूले तो सेम ही है दोनों केस में, फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस आपको ये चेंज याद रखना है कि हाफ रेंज में आपको यल कैसे कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, या डायरेक्टली 0 to l से कंपेयर करके कैलकुलेट करो, ठीक है। एंड फॉर इन अदर केस आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, है ना। लाइक से यहाँ पे c2c + 2l - c, तो 2l आएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू l। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें कुछ डाउट है? Yes. ओके, नाउ एंड हियर m इज व्हाट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो जहाँ से तो आपको ये टेबल से समझ में आ जाता है, x m + 1 से अगर रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन से, सो टोटल देयर आर m डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, सो दैट आल्सो यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल। दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनिक एनालिसिस। ये बस एक स्लाइड भी आप प्रिपेयर करते हो ना तो ये टॉपिक हो जाता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स, ओके या ओके। सो प्लीज सिट विद द कैलकुलेटर, ओके, ऑल हैव टू यूज द कैलकुलेटर एंड आपको ये आंसर मुझे बोलना है, ठीक है। ओके, सो विल रीड दिस क्वेश्चन। हाँ, तो सारे क्वेश्चन में, हार्मोनिक के सारे क्वेश्चन में आप कहीं पे नहीं ये लिख के ही रखो क्या, कि व्हाट इज आवर फॉर्मूला ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। तो आपको है ना फॉर्मूले जल्दी समझ में आएंगे एंड बाद में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर अब वो याद ही हो जाएगा आपको। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 यू विल गेट a1 cos pi x upon l प्लस b1 sin pi x upon l, okay, I will put this part in bracket and the next term is what, आपको ज़्यादा से ज़्यादा a2 तक ही आने वाला, a2 या b2 तक, a2 cos 2 pi x upon l and give the plus sign and b2 sin 2 pi x upon l, ठीक है। अब इसके आगे फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो, ओके। अभी मैं इसके आगे डायरेक्टली जंप करने वाला, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज, आप कहीं पे लिखे भी रखते हो तो आपको इजीली वो फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, ओके। नाउ लेट अस गो विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a1, तो आपको चाहिए a1 की वैल्यू, सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली द फॉर्मूला फॉर a1, एनीवन? जनरल फॉर्मूला 2/m, आई वांट द इन जनरल फॉर्मूला 2/m मल्टीप्लाई बाय Summation of y a1 का cos, हाँ, cos pi x by l. pi x by l, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला एंड नाउ यहाँ पे उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि साइन एंड कोसाइन सीरीज, ये वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो आप यल कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, बिफोर दैट आप पहले ये देखो कि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू है 9 और अभी देखो 9 कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस कॉलम, क्योंकि रिपीटेड कॉलम है ना, 9 ऑलरेडी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सो आई डोंट वांट टू कंसिडर दिस, ओके। बट तो पहला इंटरवल कैसे कैलकुलेट करनी है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो एज इट इज कंसिडर करो 0 एंड जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है 6 से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, सो दैट विल कम हियर। सो दिस इज द इंटरवल ऑफ योर गिवन tabulated डाटा, दिस इज द इंटरवल ऑफ योर गिवन फंक्शन कैन से, ठीक है। तो ये आपकी इंटरवल है, कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ रही है, जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट होगा वो यहाँ पे आता है, और ये फर्स्ट नंबर तो आपको समझ में आ ही जाएगा फ्रॉम द टेबल। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट इज l, l की वैल्यू क्या है, 3 है ना। लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विच इज 6 upon 2, दैट गिव्स मी 3, तो l की वैल्यू मुझे समझ में आ गई विच इज 3। नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर एंड m की वैल्यू क्या है, व्हाट इज m, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3
4, 5, 6. So total there are 6 distinct observations. So now I can write the formula for A1, which is 2 by 6 multiplied by summation of yi cos and pi xi by 3. ये होता है मेरा फॉर्मूला. और आपको क्या गिवन है टेबल में, क्या गिवन है यहाँ पे? ऑलरेडी cos pi x by 3 का कॉलम गिवन है, ठीक है. बट आपको क्या चाहिए? हाउ यू कैलकुलेट दिस समेशन, हाउ यू कैलकुलेट दिस समेशन. उसके लिए आपको कौन सा कॉलम लेना होगा यहाँ पे? टू कैलकुलेट दिस समेशन y मल्टीप्लाई बाय cos का कॉलम लेना होगा ना. सो y मल्टीप्लाई बाय cos pi x by 3. ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या आने वाली है वैल्यू? 9 into 1 is 9, करेक्ट. ये क्या आने वाला है बोलो? 9. देन माइनस 12, देन माइनस 14, देन सर माइनस 28 ना. माइनस 28. कहाँ पे रहेगा माइनस 28? अरे सॉरी, हाँ ये 1 ही है ना, सॉरी. माइनस 28, या देन इट इज माइनस 13, देन इट इज 10. लास्ट कॉलम आपको नहीं लेना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मिस्टेक करने वाले हो एग्जाम में भी, ठीक है. ये रिपीटेशन का कॉलम है, 9 वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर की है, तो ये सेम वैल्यू देने वाला है 9, ठीक है. सो डिलीट दिस कॉलम, आई डोंट वांट दिस कॉलम. नाउ जस्ट ऐड दिस नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2 by 6. माइनस 25. क्या आ रहा है ये? माइनस 25. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? माइनस 8.33. माइनस 8.33. ये आपका फाइनल आंसर है. अभी आप एग्जाम में देखो, एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करना है. 9 into 1 प्लस 18 into दिस प्लस, अभी चलो ये सिंपल है, देख के समझ में आ रहा है. वो डायरेक्टली कैलकुलेशन में ये एग्जांपल मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, ये डायरेक्टली कैलकुलेशन में ही करो. ओके, देन जस्ट राइट डाउन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 by 3, 2 by 6, ठीक है. ये आपको डायरेक्टली करना है एग्जाम में, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ये जितना कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, अभी आपको थोड़े बहुत मतलब समझ में आ जाएगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर व्हाट, हियर वी हैव टू कंसिडर ऑल द कैलकुलेशन इन डिग्री मोड ओनली. तो आप कैलसी पहले डिग्री मोड में कन्वर्ट करो. अभी यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया, ठीक है. तो आप रेडी में भी कर सकते हो, बट एक हैबिट आपको आ जाएगी. अब ये डिग्री में ही सारा आपको कैलकुलेशन करना है. ओके, नाउ इन दिस केस ऑल्सो पहले क्या हो गया? B1 का फॉर्मूला पहले लिखना है. Now can you tell me directly what is the formula for B1? 2 by m multiply by summation of yi what? Sin pi x by l. upon l. अभी मुझे l चाहिए, ये लिख लिया. मुझे इंटरवल चाहिए, तो पहला पॉइंट मेरा क्या है? 0. अब ये सारा डिग्री में है ना, तो पाई भी नहीं आने वाला आगे. समझ में आ रहा है आपको? ये पाई भी नहीं आने वाला, मैं चेंज करता हूँ बाद में, ठीक है. सो 0. अभी देखो y की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है? यहाँ पे रिपीट हो रही है. सो आई डोंट वांट दिस कॉलम. कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है? 180 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. और कुछ बोला है क्या उन्होंने? साइन कोसाइन कुछ नहीं बोला है. तो व्हाट इज योर l? तो l की वैल्यू क्या आएगी? लेंथ ऑफ इंटरवल बाय 90, दैट इज 90. तो ये सारा डिग्री में चल रहा है, ठीक है. तो ये आपको चेंज बाद में करना है डिग्री में. ओके, हाँ ठीक है. नाउ व्हाट इज m? m की वैल्यू क्या है? कितने डिस्टिंक्ट है? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट. m इज इक्वल टू 6. नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर B1? इसमें ये फॉर्मूला भी आपको पूरा किस में लिखना है? डिग्री में लिखना है. ओके, प्लीज टेल मी. 2 by 6. 2 by 6, yes. Summation of yi sin. अभी यहाँ पे पाई की जगह पे डिग्री में क्या एज्यूम करना है? 180. 180x अपॉन l. क्या लिखना है बोलो? सॉरी, अपॉन 90 ना, अपॉन 90. क्या लिखना है बोलो? पाई की जगह पे 180 एज्यूम करो. 180x upon 90. हाँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, बट दिस फॉर्मूला, ठीक है, हो गया. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. 1 by 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय yi sin, दिस इज 2x. और ये कॉलम भी उन्होंने दिया है रेडीमेड. तो अभी आपको समझ में आ रहा है इसमें लॉजिक क्या होता है. ये जो थर्ड कॉलम अगर आपको एग्जाम में कहीं पे आ जाता है, ओके, तो आपको ये करने की जरूरत है ही नहीं. आप डायरेक्टली क्या करो? जस्ट मल्टीप्लाई y विद दिस थर्ड कॉलम, ओके, एंड कैलकुलेट दिस वैल्यूज एंड ऐड दिस वैल्यूज, ठीक है. ये डिलीट करना है, इतना ही आपको करना है. एंड दिस यू हैव टू डायरेक्टली परफॉर्म ऑन कैलकुलेटर. ओके, सारे स्टूडेंट को आप ये कैलकुलेशन करना है और टेल मी द वैल्यू, टेल मी दिस वैल्यू.
पहले मुझे ये सम बोलो क्या है. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट. डू इट ऑन कैलकुलेटर डायरेक्टली. कैलसी में डायरेक्टली पुट करो. कैसे समझ, मतलब क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं. जितना टाइम आप अभी सेव करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा. जस्ट लेट मी शो यू. ओके, कीप दिस डाटा. आई विल शो यू. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मे बी कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा. हाँ, so now calculator is there. Yeah. हाँ, डायरेक्ट करना है, मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लेट मी हाइड दिस. ओके, हाँ. तो आप ये डायरेक्टली, जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, सो 0 प्लस, क्या आप चाहते हो ब्रैकेट में डालो ना. नेक्स्ट क्या है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 0.866. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट. ऐसे आप डायरेक्टली एक ही टाइम पे पूरा कैलकुलेशन करो. 14.4 मल्टीप्लाई बाय 0.866 ब्रैकेट कंप्लीट एंड सो ऑन. ओके, डू इट लाइक दिस. ओके, तो डायरेक्टली देख के ये पूरा कैलकुलेशन आपको करके लेना. दैट बिकम दी वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ y sin 2x. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये डायरेक्टली आपको ऐसे प्रोडक्ट करके ऐड करके आपको जाना है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू? सम क्या है वो? आप कैलसी लेके करो ये कैलकुलेशन. यही तो आपकी प्रैक्टिस है ना. मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट बस सुन रहे हैं. ये मैथमेटिक्स चल रहा है कोई. -4.67 आले. ओके, ये सम ना -4.67. 674 -1.558. Okay, good. So your answer is this option B. Okay, all students has to do this calculation. है तो एग्जाम में आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम जा रहा है उस कैलकुलेशन में. ठीक है, ये अभी क्लियर होगा, उसके लिए आपको बाद में इतना टाइम नहीं है. सो डू दिस कैलकुलेशन विद मी, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नॉट. ओके, ए नॉट कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं दिया है. सो टेल मी द फॉर्मूला फॉर ए नॉट. डायरेक्टली 2/m मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ yi. तो इसमें यल नहीं चाहिए आपको, यल की जरूरत है ही नहीं, है ना. व्हाट इज m? कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है? 9 है. कहाँ से रिपीट हो रहा है? यहाँ से रिपीट हो रहा है. डिलीट करो. तो कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 6. तो क्या आएगा फॉर्मूला बोलो? 2/6 मल्टीप्लाई बाय दिस समेशन. ऐड करो बस इनको. 9 + 18 + 24 + 125. 125. ये आ रहा है क्या? 125. 125. Just 1 minute. 41.67. ओके, सो 41.6 41.66. ये आपका आंसर. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हार्मोनिक एनालिसिस के ऊपर जो कैल्सी में सॉल्व हो रहा है, तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस 0% है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिस करते हो ना तो फिर स्कोर कहाँ पे करोगे? सो दिस इज मतलब इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती. ऐसा एक टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है ना, जिसमें चांसेस है ही नहीं मिस्टेक होने के. नाउ फॉर अ सर्टन डाटा वी हैव गिवन अ समेशन ऑफ y. So that summation of y is equal to 59.4. Also we have given the number of distinct observation which is 12. Okay, we have to calculate a naught. बोलो अभी यहाँ पे नाम जो m की वैल्यू अगर m is the equal parts of the interval. हाँ करेक्ट है. हाँ yes. So 2/m multiply by summation of y, that is 2/12 multiply by 59.4. बोलो क्या है? D option. D option. 9.9. 9.9. ठीक है. Now come to this. Yeah. So this is the famous result in integration. You can approximate a function. Okay. If a function y equal to f of x defined on the interval ab, then mean value of y is. याद है क्या आपको ये? इसका ही प्रूफ. हाँ
याद है कुछ? अभी इस पे इसका यूज़ क्या किया हमने, इसका यूज़ करके ही हमने ना ये जो सारे फॉर्मूलेज डिफाइन किए थे हार्मोनिक के, ठीक है। सो कैन यू जस्ट गेस विच ऑप्शन? बी ऑप्शन है ना? हाँ बी, ये रिजल्ट है, दिस इज द फेमस रिजल्ट। आई विल नॉट गो इन डिटेल बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। अगर आपको फंक्शन की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन इंटरवल ए बी, तो आपको क्या करना है, 1/लेंथ ऑफ दैट इंटरवल इनटू इट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। या नाउ दिस वैल्यू, अभी इस वर्ड पे अच्छे से फोकस करना है। हाफ रेंज साइन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करते समय 0 to L से ही कंपेयर करना है। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द इंटरवल। क्या है गिवन इंटरवल? यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। 0 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? डिलीट दिस कॉलम। सो 180 से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, सो 0 to 180 इज माई इंटरवल। सो व्हाट इज माई L? 180। गलती से भी आप 180 मत लो, 90 लेते तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग आने वाला है। नाउ दिस कैलकुलेशन आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये डिग्री में हो रहा है, शायद अभी मेंशन नहीं है एक्चुअली ना इसका, मतलब अभी पता नहीं उन्होंने ऑप्शन में क्या एडजस्ट किया है, बट ये कैलकुलेशन आपको कंपलसरी रेडियन में करना होगा। क्या रीज़न है? क्योंकि डिग्री है तो उनको कंपलसरी मेंशन करना चाहिए, है ना। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया ना तो 180 बिकम अ रियल नंबर, 180 रियल वैल्यू होगी, डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सो विल चेक कि उन्होंने कैसे किया। अभी हम डिग्री में ही करते हैं, बट अगर डिग्री का क्वेश्चन है ना तो यहाँ पे कंपलसरी नॉट चाहिए, कंपलसरी बोल रहा हूँ मैं। नहीं है तो 180 डिग्री नहीं होगा, वो 180 नंबर होगा, 180 नंबर होगा वो, ठीक है। सो बी केयरफुल विद दिस। तो ये मिस्टेक लग रही है मुझे, बट स्टिल लेट अस डू दिस कैलकुलेशन फॉर 180 डिग्री। देखते हैं फिर क्या क्या मिलता है। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? यल चाहिए ना, ओके इतना ही है क्या? सो चलो अभी वो तो नहीं आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन के टाइम पे आप ये देखो। सो 180 इज द आंसर। या द फॉर्मूला फॉर B1 इन द फोरियर सीरीज। B1 का फॉर्मूला पता ही है आपको, 2/m मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ yi cos pi x by l। सो व्हाट इज द l? l के लिए मुझे चाहिए इंटरवल, इंटरवल क्या है? 0। अभी यहाँ पे रिपीटिशन नहीं आ रहा है कहीं पे भी, इसका मतलब 6 से रिपीटिशन स्टार्ट होगा। सर B1 ला साइन येतं ना? हाँ हाँ तो साइन येत है ना, ये कॉस में नहीं है, साइन है, साइन ही है वो। एंड नाउ वी हैव टू डिलीट दिस कॉलम क्योंकि 6 से रिपीटिशन स्टार्ट होगा। सो 0 to 6 एंड व्हाट इज दैट L फॉर दिस इंटरवल? क्या होगा L इस केस में? 0 to 6 आपके इंटरवल है तो L क्या होगा? 6 हाफ रेंज बोला है क्या उन्होंने? हाफ रेंज आता है तो ही 3 होगा। 3 होगा। ओके बी केयरफुल विद दिस, इतना ही चेंज आपको बस याद रखना है। L 3 होगा क्योंकि हाफ रेंज नहीं दिया है। L 3 होगा। M क्या है, कितने डिस्टिंक्ट है? 1 2 3 4 5 6। सो M is 6। So here you will get B1 is equal to 2/6 multiplied by summation y I sin pi x by 3। Okay, so क्या मिस्टेक लग रही है यहाँ पे? करेक्ट किया ना, तो ऑप्शन ये कुछ तो अलग ही आ रहे हैं। पाई तो रहेगा वहाँ पे कंपलसरी, सो दैट इज अ मिस्टेक आई गेस। Yes, am I audible or not? Am I audible or not? Yes sir, you're audible. Yes, sir. हाँ, कॉल आ रहा है तो मुझे लगा डिस्कनेक्ट हुआ क्या। ओके ठीक है, तो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द ऑप्शंस, सो यू कैन करेक्ट एनीवन, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन टेक इट एज पाई एक्स बाय 3। इसको भी 3 करना होगा या ऊपर का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन से हम जाते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है क्योंकि ये रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये पाई कैंसिल होने के लिए ये इंटरवल में भी पाई चाहिए। सो आई थिंक दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। ओके हाँ, अब ये बुक का क्वेश्चन है। A0 कैलकुलेट करना है। नाउ टेल मी क्विकली, बेसिक चीज़ें बोल दी मैंने सारे। हाँ 6 से रिपीटिशन स्टार्ट होगा 9, बट आपको ये कॉलम कंसिडर नहीं करना है। तो सो योर इंटरवल इज़ 0 to 6। हाफ रेंज नहीं है तो यल की वैल्यू क्या होगी? 3, इसका हाफ होता है, ओके। A0 का यम इज 6। नाउ टेल मी A0 इज इक्वल टू 2/m मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ yi, दैट इज 2/6 मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या है समेशन, ऐड करो। 120। ये किया है शायद आपने सॉल्व ना? हाँ 41.66, ठीक है।
सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। रिपीटेशन में हो सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ, जो किया है आप मुझे बोल दो। या नाउ दिस ए नॉट कैलकुलेट करना है, 180 डिग्री है। अभी यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, कौन से, व्हाट इज दिस लास्ट कॉलम जो हमें क्रॉस करना है, 180 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू 180 0, ठीक है। हाँ, तो इंटरवल आपकी क्या है 0 to 180, हाफ रेंज ऐसा कुछ नहीं है, तो यल की वैल्यू क्या होगी, यल इज 90 डिग्री। बी केयरफुल विद दिस पार्ट ओनली, इसमें ही थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। साइन कोसाइन वर्ड आता है तो ही 2 से डिवाइड करना है, अदरवाइज डायरेक्टली सॉरी साइन कोसाइन आता है तो ही आपको डायरेक्टली लास्ट नंबर लेना है, साइन कोसाइन आता है तो ही आपको ये डायरेक्टली लास्ट नंबर लेना है, अदरवाइज इसको 2 से डिवाइड करना है। या नाउ टेल मी ए नॉट, डायरेक्ट लिखता हूँ अभी मैं फॉर्मूला, 2/6 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ व्हाट, वाई ना। क्या है आंसर इसका, बोलो, इनके एडिशन, डिलीट दिस लास्ट कॉलम, डू इट, 1/3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दैट यूज यू व्हाट, ऐड करो जल्दी से, 0, 9.2, 14.4, 70.4 70.4 70.4 ओके। हाँ, एंड डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 23.46 23.46। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसमें भी सेम है। अभी आप डायरेक्टली कैलसी में करो कैलकुलेटर, मुझे बोलो, डू इट ऑन कैलकुलेटर डायरेक्टली, टेल मी डायरेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं लिखना है अभी, ये ऑलरेडी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही है सारे, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बोलो 2.9 2.9। तो करना क्या, ए नॉट कैलकुलेट करते समय सिंपल लॉजिक क्या है, इन सबके एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 2/6, दिस एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2/6, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। सो आई थिंक दिस आंसर इज 2/9। सबको मिल रहा है, अदर स्टूडेंट्स? यस सर। अभी ये भी आपको मैंने ट्रिक बोल दी है, शायद ये लिया है कि नहीं मुझे पता नहीं। हाँ, B1, अभी ये कॉलम दिया, इसका मतलब क्या होगा, B1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये कॉलम अगर मैं आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब B1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/m मल्टीप्लाई बाय व्हाट, yi, क्या लिखना है यहाँ पे, sin 2x 2x ही होगा, वो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कॉलम दे रहा हूँ ना, इसका मतलब वो इसी फॉर्मेट में आने वाला है। सो डायरेक्टली परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। अभी लास्ट कॉलम है ही नहीं वहाँ पे, जो क्रॉस करना है वो किया है ऑलरेडी उन्होंने, ठीक है। सो जस्ट परफॉर्म दिस एंड टेल मी डायरेक्ट आंसर ना, 1 2 3 4 5 6 ये, ओके। डायरेक्ट आंसर बोलो क्या है, m इज इक्वल टू 6। अब ये बस परफॉर्म करो कैलसी में, दिस इंटू दिस प्लस 9.2 इंटू दिस, ये किया है शायद मुझे लग रहा है, बट करो देखो आंसर क्या है मुझे बोलो। Do it or tell me the answer directly. So मगज ते -1.5 Okay, so ये हो गया था पहले ही, बट ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से लिए ना, तो मे बी दोज आर इंटरप्रिटेशन। या A1, टेल मी डायरेक्टली ना, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, डिस्टिंक्ट ही है सारे, 1 कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, ओके, m इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला बोलो, 2/m मल्टीप्लाई बाय, अभी डायरेक्ट भी लिखो क्या मैं, 6, समझ में आएगा ना आपको अभी, यस ओके। सो 2/6 मल्टीप्लाई बाय y, क्या आने वाला है कंपलसरी, cos ही आने वाला है ना। अगर मैं आपको एक कॉलम दे रहा हूँ तो वही लेना होगा। डू इट ऑन कैलकुलेटर नाउ, टेल मी दिस आंसर। A option sir, -2.83. 83. Others, check this. We got one answer. यस सर। Okay, so we'll finalize this now. ठीक है, ओके। अभी समझ में आ रहा है, ये एक ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें आप डायरेक्टली ही कैलसी में कर सकते हो विदाउट पेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज B1 चाहिए,
ओके डिस्टिंक्ट है क्या, सारे डिस्टिंक्ट ही है। ओके तो यम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी 6 ही होगी, 1 2 3 4 5 6 ही होगी। b1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/6 मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई आई साइन एक्स। डू इट। C option, sir. C option. Okay. Anyone please check this again. I got one answer. Yes, sir. C option. Okay. Option C. चलो next. अभी शायद ये ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है। बट ठीक है, अभी आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया आपको, है ना। 4 into 1 डू इट, अभी ऑप्शन है वहाँ पे, यू कैन डू इट ना। आप कर सकते हो, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 4 into 1, 8 into this, 15 into this into this, मल्टीप्लाई बाय 2/6। ए नॉट है तो इनकी एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2/6, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। हाँ ये कर लेते हैं, हाफ रेंज के थोड़े बहुत कर लेते हैं, शायद ये भी किया है, ये सेम हो गया हमारा। द वैल्यू ऑफ यल, ये हो गया, यल इज़ वॉट दिस, यहाँ से प्रेडिक्शन स्टार्ट हो रहा है, सो यल इज़ 180। ए नॉट का तो किया है, बहुत फॉर्मूला ही चाहिए, ठीक है। ए नॉट पीरियड 6, which option is correct, A naught, the value of A naught, I think it is wrong ना, is this correct, ये correct है क्या, क्या नहीं चाहिए, No, sir. Cos. हाँ, तो this is the mistake, ठीक है। तो सब में नहीं चाहिए शायद, वो बाय मिस्टेक आ रहा होगा, ले आप ओके, आपको पता है, यू कैन करेक्ट दिस या ये भी किया है हमने ना, -4 पॉइंट क्या था, ये था ऑप्शन बी था, ये भी किया है, ये भी किया है, ठीक है, हो गए। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे ना हार्मोनिक के, जो मेरे पास थे, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनिक एनालिसिस, ठीक है। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नाउ द लास्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस दिस वन क्वेश्चन, एंड दैट इज यू कैन से ऑल अबाउट दिस यूनिट नंबर 3। ओके, तो कुछ डाउट्स है अभी तक हार्मोनिक में? हार्मोनिक टॉपिक क्लियर हो गया सबको? Yes? Yes. Okay. And now the next topic is what? ऐसे एक क्वेश्चन मुझे आया था ग्रुप पे, सर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या, पहले आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देर आर ओनली 3 मतलब ऐसे टोटल देर आर ओनली 3 क्वेश्चंस, ओके। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ये सीरीज कैलकुलेट करनी है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें ये सीरीज कैलकुलेट करनी है, एंड थर्ड इज दिस। सो दिस आर दी ओनली 3 वैरायटी, और दिस आर दी ओनली 3 डिफरेंट एग्जाम्पल दैट विल बी आस्क्ड इन दी एग्जाम। यही तीनों टाइप के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसके अलावा है ही नहीं, ठीक है। सो आइदर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज 1/1² + 1/2² + 1/3² + 1/4², और आइदर यू हैव टू कैलकुलेट द विद अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस एंड, लाइक से 1/1² - 1/2² प्लस माइनस एंड सो ऑन, या तो ऑड नंबर की एडिशन 1/1² + 3² + 5² + 7², ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर भी दिया, तो अगर आप प्लेन ऐड करते हो 1², 2², 3², 4², योर आंसर इज π²/6। अगर आप अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन लेते हो तो π²/12। अगर आप ऑड नंबर की सीरीज ऐड करते हो तो π²/8, ठीक है। हाँ, अभी आप मुझे डायरेक्टली ये बोलो, जस्ट बाय लुकिंग दिस, रिमेंबर फर्स्ट वैल्यू इज π²/6, सेकंड इज π²/12, π²/8। कैन यू डायरेक्टली टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मैंने ऊपर का क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट इज देयर। You can't say addition. π²/6. इसका आंसर क्या आने वाला है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। अभी अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन है, π²/12 आने वाला है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग अ फोरियर सीरीज आपको पहले ही पता, अगर इन तीनों का आंसर आपके पास है रेडीमेड, तो आप डायरेक्टली π²/12 को टिक कर सकते हो। दिस इज द वन अप्रोच, इसमें कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर फंक्शन कुछ भी आने दो ना। If I change this function instead of π² - x², if I take x², if I take sin x, if I take cos x, okay, whatever function you can take here in place of this f of x, but आपको पता है सीरीज की वैल्यू तो वही आएगी ना। किसी भी फंक्शन के लिए आप सॉल्व करो, किसी भी फंक्शन के लिए आप सॉल्व करो, बट सीरीज की वैल्यू तो वही रहेगी, π²/12 ही होगी, ठीक है। तो यही
सेम लॉजिक यू कैन यूज फॉर दिस रिमेनिंग 2 सीरीज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। अभी एक्चुअल सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है, ओके। सो फॉर दैट, फॉर ऑल दिस 3 टाइप्स आपको फोरियर सीरीज गिवन होगी। इन क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास प्रॉपर फोरियर सीरीज रहेगी, आपको बस वो सीरीज नीचे लिखनी है। So this is the Fourier series representation of the function pi square minus x square. So just write down this term as it is here. So what is given? Pi square minus x square is equal to 2 pi square by 3 plus 4 into summation n runs from 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 upon n square cos nx। ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको बस यही एक स्टेप चाहिए, इससे ये सीरीज आने वाली है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। सो लेट मी राइट दैट आल्सो। व्हाट इज अवर क्लेम? कैलकुलेट क्या करना है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। अभी पहले आप मुझे ये बोलो, ये जो सीरीज जो आपको कैलकुलेट करनी है, दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अगर आप ये ऊपर का इक्वेशन देखते हो, इस इक्वेशन में इन द इक्वेशन 1 देयर आर ओनली 3 टर्म्स, ओके। फर्स्ट टर्म ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। सो देयर आर ओनली दिस 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन 1। तो आप मुझे पहले ये बोलो, आपको ये इक्वेशन 1 का यूज करके ये सीरीज कैलकुलेट करनी है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, यूज दिस इक्वेशन 1 एंड कैलकुलेट दिस इनफाइनाइट सीरीज। तो आप मुझे पहले ये बोलो, ये जो इनफाइनाइट सीरीज आपको कैलकुलेट करनी है, ये कौन से टर्म में एडजस्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वैसे कौन से टर्म में एडजस्ट होगी, थर्ड में ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक ही टर्म है। तो इस एक टर्म को आप यू कैनॉट कन्वर्ट दिस सिंगल टर्म इनटू दिस इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है ही नहीं। अगेन इन दिस सेकंड टर्म इट कंटेन ओनली 1 टर्म, सो यू कैनॉट एडजस्ट दिस टर्म विद दिस इनफाइनाइट सीरीज। बट अगर आप थर्ड टर्म पे फोकस करते हो ना, थर्ड टर्म में समेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस समेशन यू कैन सी हियर दिस टर्म कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो अगर वो सीरीज आपको एडजस्ट करनी है ना, तो ये सीरीज आपको यहीं पे एडजस्ट करनी है। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ये सीरीज एडजस्ट करनी है ना, सो दैट वी हैव टू एडजस्ट हियर ओनली। अभी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आप एज्यूम करो कि अगर आपने ये सीरीज यहाँ पे एडजस्ट की है, तो उस सीरीज में कहीं पे भी कॉस का टर्म नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कॉस का टर्म नहीं आ रहा है, ओके। सो इंस्टेड ऑफ कॉस आपको क्या चाहिए, वहां पे कॉस यानी एक्स की जगह पे आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, cos है तो cos x की जगह पे यू कांट कंसीडर हियर 0। अगर आप cos nx की वैल्यू 0 लेते तो सीरीज कहीं पे भी जनरेट नहीं होगी। तो cos nx की जगह पे आपको क्या चाहिए, 1, बिकॉज विच विल नॉट अफेक्ट अवर अदर कैलकुलेशन। ये समझ में आ गया कि cos nx की जगह पे आपको 1 क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप 0 लेते हो तो ये कहीं पे भी ये सीरीज नहीं आने वाली है ना। तो अगर आप 1 लेते हो तो एटलीस्ट cos nx आपका यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ, नाउ दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x, ये सारा x के लिए होता है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। नाउ टेल मी वन वैल्यू ऑफ x विच गिव्स मी cos nx इक्वल टू 1। टेल मी अ वैल्यू विच गिव्स मी, टेल मी वैल्यू ऑफ x विच गिव्स मी cos nx इक्वल टू 1। सिंपल वैल्यू, आई वांट टू वर्क ऑन सिंपल वैल्यू। टेल मी द इजीएस्ट वैल्यू विच गिव्स मी x equal to 0। सबसे इजी आपको पता है, x इक्वल टू 0 पुट करते हो, ओके। अभी आपको ये x इक्वल टू 0 ही क्यों लेना है, बिकॉज दैट नंबर इज लाई इन दिस इंटरवल। So you cannot take the value of x, okay, which is outside this interval। तो लेते समय आपको इसमें ही लेना है, तो ये भी थोड़ा आपको देखना होगा। You have to take a value which lies in the interval -pi to pi। तो आगे के वैल्यूज के लिए ये वर्क नहीं होगा। अगर आप लेते भी हो तो which is totally wrong, तो लेना ही नहीं है। So select a value from this interval which gives cos nx equal to 1। तो ये होता है x equal to 0 के लिए। तो x equal to 0 पुट करो इन इक्वेशन 1, हो गया इक्वेशन आपका सॉल्व। इतना ही है इसमें। So that gives me, let me take a red color again, pi square x is 0 which is equal to 2 pi square by 3 plus 4 summation n runs from 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 upon n square। अब ये cos की जगह पे 1 आ जाएगा, ओके। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। सो pi square minus 2 pi square by 3 is equal to 4। now let me solve this summation। पुट n इक्वल टू 1। जब आप n इक्वल टू 1 लेते हो, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, इवन हो जाएगा, सो 1/1 स्क्वायर। जब आप 2 लेते हो, ये माइनस आ जाएगा, -1/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीरीज आ जाएगी। आप चेक करो, n इक्वल टू 1 पुट करो, ये टर्म मिलेगा, 2 पुट करो, ये टर्म मिलेगा, 3 पुट करो, ये टर्म मिलेगा, ओके। तो ये टर्म सीक्वेंस आपको मिल रही है, जो सीरीज आपको
कैलकुलेट करनी थी, तो आप क्या करो 4 को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो एंड डू दिस सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 2 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 4, तो नीचे क्या आने वाला है 12 एंड इज इक्वल टू व्हाट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। हो गया। So फ्रॉम दिस अप्रोच ऑल्सो यू विल गेट योर आंसर टू बी पाई स्क्वायर बाय 12। ओके, बट आपको भी पता है, अगर आपको पहले ही अगर सीरीज की वैल्यू पता है तो इसमें इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सो इफ यू डोंट वांट टू गो बाय दिस वे यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस पार्ट, बट यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। ये होता है एक मतलब अलग अप्रोच, जैसे आप कैल्शियम में करते हो उसमें कोई नॉलेज आपको गेन नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, फास्ट भी कैसे जाना है, क्विकली भी कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू use the Fourier series to find the value of this infinite series. This you can say this is the one of the application of your Fourier series. और भी बहुत सारे application आप धीरे धीरे learn करने वाले हो of this Fourier series, but this is one of the application you can easily find value of this infinite series. ये सबसे difficult job होता है calculate करना, series की value calculate करना, but यहाँ पे Fourier series से आप easily calculate कर सकते हो। ठीक है, so that is all about the Fourier series. इतना ही है इस Fourier series के क्वेश्चन। सर असे क्वेश्चंस किती मार्क्स ला येतील एमसीक्यू मध्ये? 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स में ना मिनिमम 2 स्टेप का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे ये डिवाइड कैसे होता है मैं आपको बोलता हूँ एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना, सो विदाउट मतलब जैसे